So before we move further, I would ask every one of you to actually go through the syllabus of CSS subjects, optional and the mandatory ones. So you would have this idea that what are the contents and what are the features of those very subjects which you are going to opt, right? And it's not confined to one subject. I am asking about every subject, like the 12 of them, right? You need to go through the syllabus of 12 subjects, and then you have to come up with the relevant ones, you have to come up with the similar ones. So yeah, there will be topics which will be interconnected with some other subject, and there will be topics which will be repeated in other subjects as well, right? So when you make a list of them, when you go through the entire syllabus and when you make a list of them, it would be easy for you to cover them, right? It would be efficient for you because that would require less time rather than you would be preparing for each and every subject separately. When you analyze the entire course outline, right, so that would be easy for you to efficiently cover the entire thing in less time and less energy. Say like you will be investing much lesser time, you will be investing much lesser energy on that particular subject, right? Let me give you this example. Let's say that you have to cover this one topic of climate change, right? Climate change is an interconnected subject as in it has relevance, right? So it could come in Pakistan affairs, right? That how we are suffering from floods and droughts and everything, and what should be the initiative, what should we do next, right? And then it can come into the current affairs as well, that what are the developments which have already been happened, right? On global level, on regional level and on national level, right? It could come in political science as well, what could be the political measures or political reasons behind the exaggeration or behind the portrayal of this climate crisis or whatsoever it is. Like we know that there was this Paris Agreement, and then there is every year we have this conference of parties, COP27, COP26, COP28, right? So it is interconnected. And now when you talk about international relations, you can have the very thing in international relation as well, right? You can have the question about climate crisis in the paper of international relations, like what nations are doing to curtail this problem, and how are things being done on international level, and what are the national ramifications and so on. Then there is another subject which could have this particular topic. Any idea? Any other subject where we can have this climate crisis topic? Sorry? General studies? General science and ability? Yes. General science and ability, right? General science and ability is particularly deals with these kind of things, right? So you can have the similar topic in 5 different subjects, right? So how would you be able to actually know that what topics are interconnected and what topics are similar? How? Only then when you go through the subject syllabus outline and the contents of that very subject. Am I clear? इतनी बात समझ आई है सबकी? क्या फरमा रही हूँ मैं? समझ आ रहा है इतना? क्या ज़रूरी है? सबसे पहले we need to go through the outlines of those 12 papers, 12 subjects जो भी हमारे हैं. Why? क्यों ज़रूरी है? टॉपिक्स हमारे इंटरकनेक्टेड है, रिपीटेड हैं, सही है? टॉपिक्स हमारा एक टॉपिक जो है वो 4-5 सब्जेक्ट्स के अंदर आ सकता है, उसके हवाले से सवाल आ सकता है. अच्छा, देयर इज़ दिस वन मोर सब्जेक्ट आई टोटली फॉरगॉट. एनवायरमेंटल साइंसेस के बारे में पढ़ा है किसी ने? तो एनवायरमेंटल साइंस तो बेस्ड ही इसके ऊपर कर रहा है ना. क्लाइमेट हो गया आपका, एटमॉस्फेयर हो गया आपकी, दूसरी चीज़ें हो गई हैं, सीज हो गए, ठीक है? आपका एनवायरनमेंट बेसिकली कैसे इम्पैक्ट कर रहा है आपकी लाइफ को, और आप कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट को, सही है? सो you need to actually have a thorough visualization of all these subjects and the contents, right? ये बात क्लियर हो गई है? अच्छा, नाउ आई वांट टू आस्क कि आप अगेन कि जितने लोगों ने IR ऑप्ट किया है तो वो क्यों किया है? व्हाट वर द रीजंस? कोई भी नहीं? हाँ बोलिए.
कोई मसला नहीं है, इट्स ऑल राइट, जस्ट स्पीक फ्रीली। मैं देखने में खौफनाक लगती हूँ लेकिन वैसे हूँ नहीं, हूँ भी वैसे तो, लेकिन जैसे हम देखें कि भाई पॉलिटिकल हिसाब से देखें कि भाई पॉलिटिकल ग्राउंड पे क्या क्या हो रहा है और क्या इनका बैकग्राउंड था। सही है। और ये जो चेंजेस है वो आगे बता सकते हैं कि भाई ये क्या है। कश्मीर इशू को आप में क्या था, ऐसे ही लिंक हो जाता है कि भाई पुलिस ऐसे कि जैसे आगे हम मदद करेंगे तो इससे बहुत सारे जो सिविलियन जो गलत वो हुआ हो और वो पुलिस ऐसे ही मदद करती है। राइट। जैसे कश्मीर इशू है, इसके अलावा जो वर्ल्ड वार है, ये जो है ना आप देखने की काम करते हो, इसके अलावा ये ऐसे भी राइट, ठीक है, वेरी वेल। आप सर कोई बात नहीं, मैं इधर देख रही हूँ, आप बोलो। Keep speaking, it's all right. दसवीं जब आप सब्जेक्ट उसको पढ़ते तो उससे बहुत हम मालूमात हासिल कर सकते हैं। मेरा सब्जेक्ट भी IR है यूनिवर्सिटी में। अच्छा, माइनर में मैंने रखा है, तो मैंने इसलिए IR रखा है तो इसमें ज़्यादातर मालूमात ज़्यादा है। अच्छा, हाँ, तो आज मैंने सुना IR की क्लास है और मेरी क्लास भी फर्स्ट क्लास है IR की इधर ठीक है। CS कॉर्नर में, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं वहाँ भी IR की क्लास ले रहा हूँ और इधर भी लेके देखूँ। कहाँ पे? यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में? जी में। कौन से यूनिवर्सिटी में है आप? फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी। फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में। तो बेसिकली आपका एकेडमिक बैकग्राउंड जो है वो IR से है, यही कह रहे हैं आप? जी में। इसलिए आप ऑप्ट करना चाहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को? जी में। ठीक हो गया, फेयर इनफ। आप? हाँ जी, आप बताइए। जी जी बिल्कुल, आप बताइए। कोई बात नहीं, इट्स ओके। अच्छा, सोचो 2 मिनट, आप भी और आप भी, आप 2 मिनट लें। मीनवाइल आई शुड लिसन टू हर। हाँ, There's nothing much I know about it. And it's just go through services from different subjects just to select them. I haven't just confirmed it. fair enough. So what is your academic background? Like where? I did my associate degree from DCW. So my majors were totally different. It was massification, psychology, and English literature. From where again? I'm sorry. Phase 8 DCW. I don't know what it is. Degree College for Women. It's DHA. Oh, okay. Fair enough. All right. I'm sorry, I haven't had any idea about it, so it's all right. I'm so sorry for that. Right, that's good. So you have done your graduations, or you are still in? Done. But in college, there's only 2 years program. Okay. I did that. So you have done your bachelor's basically, and then you will be opting your master's in some other university, right? Okay, fair enough. So right now you are analyzing which subjects would be more suitable for CSS. ऐसे ही है? 2 मिनट और। Bachelor's मेरा आया है। अच्छा, वैसे मेरे पास कुछ नोट्स करने में राइट राइट राइट, जो कि CSS के लिए ठीक है, ओके, मेक सेंस। I had academic background in international relations. Moreover, I have attended once CSS and I scored good marks in international relations. Why I opted international relations? Because it is a broader perspective of studying different relations, of studying different issues. That's why, and I have an academic background in international relations. That's why. So that supports it. सही है, ठीक है, मेक टोटली सेंस। हाँ जी सर, सॉरी, थोड़ा ज़ोर से, बूढ़ी हो गई हूँ, आवाज़ कम आती है। हाँ, सिविल इंजीनियरिंग है, राइट। इन विच यूनिवर्सिटी यू आर? NED?
देखते फिर बहुत समझ आएगा, उनको बहुत सारा अपन देखते तो राइट राइट राइट, सही है। डोंट डू दिस। अच्छा, तो आपने इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में नहीं पढ़ा पहले? कूल। अच्छा, एक जो बेसिक आइडिया मुझे वो मिल रहा है वो ये है कि या तो आप लोगों की ऑलरेडी फील्ड है, सही है, ईदर यू ऑलरेडी आर अवेयर ऑफ द सब्जेक्ट, सही है, और आप बेसिकली सिर्फ चेक कर रहे हैं कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, सही है। अच्छा, एक तो प्री रिक्विजिट आपने लिख लेना है आज के जाके, जो है ना 12 सब्जेक्ट्स की आउटलाइन आप सबने पढ़नी है, ठीक है। उसका रीज़न ये है जो मैंने आपको बता दिया है कि उससे आपको एक थॉरो एनालिसिस करने में मदद मिलेगी कि हम अपना टाइम किस तरह से जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, कौन से टॉपिक्स हमारे लिए ज़्यादा रेलेवेंट हैं, कौन से टॉपिक्स जो हैं वो रिपीटेड हैं जिनके ऊपर कम मेहनत करनी है, और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको जो है वो अगर हम इस एंगल से भी कर लें और इस एंगल से भी तो ये हमारे 4-5 सब्जेक्ट्स कवर कर लेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। इंटरनेशनल रिलेशंस में बेसिकली ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि जो है ना आप वो टॉपिक्स जो हैं वो आपके मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के अंदर केटर हो रहे होते हैं, तो इस लिहाज से इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट, ठीक है। और फिर ये आपकी बात भी दुरुस्त है कि इट हैज़ अ वाइडर स्कोप, सो दैट्स व्हाई इट फैसिलिटेट्स योर नॉलेज गैप्स एज वेल, राइट। In international relations or broadly in social sciences, there are no wrong answers, ठीक है। Our teachers used to tell us that there are no wrong answers, ठीक है, there can only be wrong questions, सही है। So whatever the theory you are coming up with, you have to have proper back of that thing, proper argument behind presenting that theory, सही है। Today we are going to discuss the security concept of 21st century, right? So despite your differences in academic knowledge or information, the concept of security, like what do you think of security when you hear this thing, one by one? हाँ, Security as in security of national interest, to secure national interest, okay. Yes, next. Who do we have next? What's your name, sir? Your name, sir? Sorry? ज़हीर। ज़हीर, आप जब सिक्योरिटी का वर्ड सुनते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? सिर्फ सिक्योरिटी आती है? मतलब आप क्या मतलब लेते हैं, ये क्या, इसको क्या है, ये क्या चीज़ है? ज़ोर से, थोड़ा ज़ोर से आगे आ जाएं, बेशक आप लोग एक एक आगे आ जाएं, जो भी है, हाँ जो भी है, क्योंकि आगे आ जाओ, आप आगे अंदर हो जाओ, आप लोग आगे आ जाएं थोड़ा सा, क्योंकि मैं बार बार बोलूँगी फिर उसमें टाइम जाएगा ना, इस वजह से करीब हाँ ओके बैठ जाए ना प्लीज़। हाँ जी ज़हीर प्लीज़। हाँ, जो भी आपके जहन में, जस्ट स्पीक इट आउट। नो, यू हैव टू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, सही है। जो किसी और ने बता दिया वो रिपीटेड आंसर नहीं, ठीक है, सुन के नहीं बताना है। यू हैव टू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। आई विल कम टू यू। आपका क्या एकेडमिक बैकग्राउंड है ज़हीर? क्या पढ़ा है आपने? बैचलर्स ऑफ साइंस। पर्टिकुलर कौन सी फील्ड है आपकी? साइंस में क्या कर रहे हैं? इंजीनियरिंग। कहाँ से? सिंध। राइट राइट, मेक सेंस। सिक्योरिटी अगेन, इधर आओ, आगे इधर आके बैठो। आप रहते कराची में हैं या सिंध में? सिंध में रहते हैं। और आप सिंध में जाते कहाँ, कैसे हैं, ट्रैवल कैसे करते हैं आप? सॉरी, ज़ोर से बोलिए सर, आप बहुत अमीर हैं सर। अच्छा ठीक है। मीनवाइल आप हाईवे के ऊपर जा रहे हैं, इफ़ यू गेट रॉब, गॉड फॉरबिड्स, ठीक है, इफ़ यू गेट रॉब,
would you still call that a secure environment to travel? You're welcome. हाँ जी आप. Sorry? To secure from threats. Okay. What kind of threats? Yes, you. नेशनल इंटरनेशनल इंडिविजुअल बेस National, international के अलावा इंडिविजुअली भी हो सकता है किसी को इंडिविजुअल भी हो सकती हैं. Yes, कैसे? फॉर एग्जांपल हम जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं ये भी वो तो हमारी हो गया ना. privacy- नहीं नहीं, वो एग्जाम्पल हो गई है. सही Come up with something else. Sorry? इंडिविजुअल में तो फिलहाल Can we turn the camera while they speak ताकि इनको भी थोड़ा डर आए ना कि हाँ हमें बात करनी है तो ज़रा सही से. Can we move it? अच्छा, जब जब ऐसे हो ना कि इधर बात हो रही है तो इट्स ऑल राइट. मैं नहीं भी आऊँ, कोई मसला नहीं है, चिल सीन है. ये ज़रा आए ना कैमरा के अंदर, थोड़ा इनको सेलिब्रिटी फील हो. अच्छा, फरमाएं जी, जल्दी जल्दी. वी हैव टू कवर सो मेनी थिंग्स. इंडिविजुअल बेस पे तो यही जी फिलहाल मालूम है कि आपको सॉरी, ज़ोर से दोबारा. जो आपका मोबाइल है हाँ, वो आपकी सिक्योरिटी बहुत मायने रखता है. जो फ़ोन है वो सिक्योरिटी के लिए मायने रखता है. फॉर एक्सप्लेन. एग्जांपल आपका डेटा है उसको आपने सिक्योर रखना है. आपके पास आईडीज़ हैं, पासवर्ड हैं, What do we call? एप्लीकेशन What do we call it? What do we call it? Security. क्या क्या कहते हैं? Do we have any particular terminology? डेटा Data. Yes, we are doing. सही है. We are securing data. It's all right. सर, जिससे सवाल किया जाए ना, I would really appreciate कि the person I am talking to at the very moment, only he has to respond, right? I would never want anyone else to just, bring in your opinion. Because I know, I am aware that all of you are equally well learned, mashallah, informative, but informed, sorry. But the thing is that I need to instigate the question in everyone's mind, right? I am everyone's teacher. Sahi hai? Does it make sense to you? Okay, so I hope that we will be trying our level best from now on to behave in a better way. Okay? All right. What do we call it? We have our cell phones. That cell phone has passwords, emails, information, and we have to secure it. What sort of security that calls? Sorry? Database security. Anything else? Any terminology, particular terminology? साइबर सिक्योरिटी. नहीं, ऐसे नहीं. दिस इज चीटिंग. ऐसे नहीं होता. ठीक हो गया. नेक्स्ट सर, आप. नाम क्या है आपका सर? सॉरी, जाफर. जावेद प्लीज़. जैसे सिक्योरिटी का मतलब वर्ड सुनकर जो मेरे माइंड में आया, जो अपने हिसाब से जो है उसमें जो परसीव किया, हाँ हाँ, ये हो सकता है कि मतलब कि सिक्योरिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स. आप इनकी तरफ फोकस कर लें. कैमरा इनकी बैलेंस तरफ. आउट हो गया तो बैलेंस आउट हो तो रहा वहाँ पे मसला हो गया. जब ये इनकी है. या voice थोड़ा सा ऐसे करके रखो टिल्ट के ये आए. चाहिए. मैंने इनकी वॉइस चाहिए. नहीं, ये आए. आई रियली वांट देम टू बी इन देयर, ताकि लगे कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी. दे आर द वंस हु आर मेकिंग दिस क्लास सक्सेसफुल. We can say that security of human rights, सिक्योरिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स. security of international इंटरनेशनल व्हाट? security. इंटरनेशनल सिक्योरिटी व्हाट? Security of human rights. इंटरनेशनल सिक्योरिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स. क्या मतलब है इस बात का? ये कि सब इंटरनेशनल लेवल पे वर्क कर ये किसी भी जो है ना वो ह्यूमन राइट्स की जो है ना इसको सिक्योर करना. क्या हो? किसी भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ना हो. यूनाइटेड नेशन है, जैसे मतलब किसी भी कंट्री में कुछ भी अगर वाक्य होता है जो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ होता है तो वो वहाँ से जो है रिस्पॉन्स करते हैं. जैसे अभी इंडिया का जो है ना वो मणिपुर में हो रहा है, तो मणिपुर में जो हो रहा है, जो हरदीप सिंह का केस है, वहाँ पर जो है ना वो अमेरिका ने जो है ना वो एक्शन उठाया कि जो है ह्यूमन राइट्स के खिलाफ अपनी कर रहे हैं. can we before Manipur or before Canada, before US, can we have the example of Kashmir?
where blatant human rights violation being done by India? Can we have it? Yes, madam. Can we have the example of Palestine, where brutal murders are being carried out every day, every hour sometimes? Can we have the example of Syria, right, where in war people have used chemical, biological weapons against Syrians, against innocent citizens and kids and everyone? Ukraine, you can say. Yeah, nuclear is one of them, of course. Nuclear is one of them, right? So you got the idea that what we are talking about. समझ आई ये बात कि हम क्या बात कर रहे हैं? ठीक हो गया. यस सर, आप जी जी बिल्कुल आप. मैम सिक्योरिटी मेरे हिसाब से ग्रुप की उसमें हो सकती है, ग्रुप से रिलेटेड कोई भी, ग्रुप से रिलेटेड, ग्रुप को डांटना पड़े. अच्छा, और पर्सनल सिक्योरिटी हो सकती है. पर्सनल सिक्योरिटी, ओ माय किसी शख्स गॉड. की हो गई, ये कौन सी पर्सनल सिक्योरिटी? मतलब किसी शख्स की हो गई, तो किसी शख्स की सिक्योरिटी क्या? प्राइम मिनिस्टर आता है हमारे पास विजिट करता है, उसकी सिक्योरिटी के हिसाब से हो गया. सही है. और ग्रुप में वुमेन सिक्योरिटी हो गई, ग्रुप में वुमेन सिक्योरिटी, विमेन सिक्योरिटी, ओके. एंड और ग्रुप में जैसे टीमें आ रही हैं पाकिस्तान में, उनके लिए सिक्योरिटी होगी, ग्रुप सिक्योरिटी. डेलीगेशंस, इंटरनेशनल डेलीगेशंस आ रहे हैं तो उनकी सिक्योरिटी हो सकती है. साइलेंट कर दीजिए इसको. और बस और बहुत हो सकती है. बाकी बहुत हो गया. अच्छा चलें, यू आर राइट टू द एक्सटेंट, बट ओके लेट मी टेक योर आंसर सर. आप अपनी सीट थोड़ा पीछे कीजिएगा. हाँ थोड़ी पीछे. यस, थोड़ा और. हाँ सेट है, ठीक है. जोर से जोर से जोर से. उसकी जो कुछ भी हो चुका है, क्या हो चुका है? जो कुछ इंसिडेंट हो चुके हैं पास्ट में, उसको देखते हुए जो एनी एग्जाम्पल, एनी एग्जाम्पल. वॉर, कोल्ड वॉर यूएसएसआर की हो गई, और अफगानिस्तान पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट. आइए, इससे बाकी आपका पर्टिकुलर में मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ. ओके लेट मी आस्क दिस अगेन. What do you think and what do you perceive when you hear this word of security? जब आप security, ये एक word है ना, जब आप ये सुनते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? आपको पता है ये बात कि हमारा brain जो होता है basically it identifies and relates things with their pictures, images. ठीक है? If I say anything, my brain will not do the spelling check of that particular word or vocabulary, anything like that, right? It will have an image right here. सही है? जिसकी वजह से हमें वो बात याद आएगी या हमारे जहन में ये कॉन्सेप्ट होगा. सही है? ये बड़ी टेक्निकल सी चीज़ है, मुझे बड़े मज़े की लगी अभी थोड़े दिन. आई मीन आई गॉट टू नो अबाउट दिस 2 or 3 days ago. आई वॉज रियली फैसिनेटेड टू रियलाइज़ कि ये इस तरह से है. ठीक है, तो जब आप सिक्योरिटी का एक लफ्ज़ सुनते हैं तो आपके जहन में क्या आता है, मैं यही पूछना चाह रही हूँ ना, ताकि अगर आपको जब आपके रूट लेवल पे आपको कॉन्सेप्ट एक आइडेंटिफाई हुआ है, ओनली देन यू विल बी एबल टू एलिवेट योर नॉलेज फर्दर मोर ना. ये मैं पूछना चाह रही हूँ, इसलिए ये क्वेश्चन आंसर चल रहा है. हाँ जी बताइए. हम जब भी अपनी कोई भी स्टेट हो, हम अपने आप को सिक्योर फील करें. आप अपने आप को सिक्योर फील करें या फिर आप स्टेट की बात करें? किसी भी स्टेट में मैं अपने आप को सिक्योर. किसी भी स्टेट में. अच्छा, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ स्टेट्स. एक स्टेट्स वो कंडीशन वाली स्टेट है और एक द स्टेट वी लिव इन, राइट? सो एग्जैक्टली विच वे यू आर रेफरिंग? द कंडीशन वन? कंडीशन वन नहीं, वो होती है ना, आप किसी और जोन में होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब समटाइम्स आपका जोन ही अलग होता है, आप किसी और स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं. सो वी सी आवर ब्रदर्स सिटिंग अंडर द ब्रिजेस एंड इन द कॉर्नर्स ऑफ पार्क्स एंड समवेयर एल्स लाइक दैट. सही है? वो उनकी स्टेट ऑफ माइंड ही दूसरा होता है ना. तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि विच स्टेट आर यू रेफरिंग टू? आई एम रेफरिंग जस्ट यू आर रेफरिंग टू देयर स्टेट? No. I'm referring to any responsible citizen. Means के जो responsible है उसको पता होगा कि वो भाई कि मैं सिक्योर हूँ या रिस्पॉन्सिबल नहीं. वो भी है.
You know, they Responsible. fly. Ma'am, You know, they fly. They're very responsible. They fly every time. So they're very responsible. Anyways, did I ask you? Yes. प्रोटेक्शन फ्रॉम थ्रेट Protection from threat. Give me something else. Sorry? There are, okay, we are talking about threats, okay? Where do we have threat? Here. Okay. So there are two types of threats. One is traditional. It's right here. And the second one is non-traditional, okay? Acha.